ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ SBI ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਮਹਰ ਦੁਆਰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਮਹਰ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਮਹਰ ਦੁਆਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜੀਜਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਜੀਜਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਨਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, MD CEO ਨੇ। ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ is the face of Twitter campaign launched by RBI to urge customers of bank for adopting digital mode of payment। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ RBI ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ RBI ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸ, ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਨਾਊਂਸਡ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ 1 ਲੱਖ ਟਨਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ? ਵੀਟ ਦਾ। ਵੀਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ 1 ਲੱਖ ਟਨ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲੇਬਾਨੋਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਬੁਲ ਔਰ ਲੇਬਾਨੋਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਾਨੋਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਪੇਰੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮੈਨ ਲਾਂਚਡ ਅ WhatsApp ਨੰਬਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ। DV ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਕ ਕਰਾਕਤਾਊ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਅਰੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਅਰਪਟਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਕਰਾਕਤਾਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੂਗਲ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਅ ਨਿਊ ਵਰਚੁਅਲ ਬਰੇਲੀ ਕੀਬੋਰਡ। ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਰੇਲੀ ਕੀਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? Android 5 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ, Android 5.0 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰੇਲੀ ਕੀਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਬਰੇਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Android 5.0 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਇਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ।
अगर CEO की गल करिए तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO ने। नैक्सट है द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स कितना आया 108 इंडिया का रैंक आया जिसनों कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग भी कहा गया। कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग या फीफा रैंकिंग्स 2020 कितना रैंक आया 108। कितना रैंक 108। टॉप कितना है बेल्जियम ने, सैकेंड प्लेस ते फ्रांस और थर्ड प्लेस ते ब्राज़ील है। टॉप बेल्जियम ने किया है, सैकेंड प्लेस ते फ्रांस और थर्ड ब्राज़ील। फीफा का हैडकुआटर जूरीच स्विट्जरलैंड है। फीफा का हैडकुआटर कितने है जूरीच स्विट्जरलैंड के। फीफा के हैड कौन ने गियानी इन्फेंटिनो फीफा के हैड ने। नैक्सट है HRD मिनिस्टर कौन है रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने। यह हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने इन्होंने द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया युक्ति पोर्टल किन्ना ने शुरू किया HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने। युक्ति की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनती है यंग इंडिया कंबैटिंग विद नॉलेज टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कंबैटिंग विद नॉलेज टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कित्थे शुरू किया है न्यू दिल्ली के इस पोर्टल नूं लॉन्च किया गया। नैक्सट आप अज की स्टेट डिस्कस करांगे। अज की स्टेट अपनी मणिपुर के बारे डिस्कस करांगे। मणिपुर बनाया गया 21 जनवरी 1972 मणिपुर बनाया गया। कैपिटल इंफाल है, लार्जेस्ट सिटी इंफाल है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। नजमा हेपतुल्ला इत्थे दे गवर्नर ने। 16 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 लोक सभा सीट, 1 राज्य सभा सीट और 60 विधानसभा की सीट्स ने। 16 डिस्ट्रिक्ट ने, 2 लोक सभा सीट्स ने, 1 राज्य सभा सीट है और विधानसभा की गल करिए तो 60 विधानसभा की सीट्स ने। बॉर्डर स्टेट्स नागालैंड, मिजोरम और असम। नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है और नागालैंड, मिजोरम और असम। नागालैंड, मिजोरम और असम 3 स्टेट्स के नाल बॉर्डर शेयर करती है। मितेई लैंगुएज इंपोर्टेंट है इत्थे। मितेई लैंगुएज डोमीनेंट लैंगुएज इत्थे मितेई लैंगुएज बोली जाती है। लिली फैसटिवल मणिपुर के उखरूल दे विच लिली फैसटिवल सैलीब्रेट किया गया सी। स्टेट एनीमल की गल करिए शंघाई और स्टेट बर्ड नोंगिन स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर लिली है और स्टेट ट्री उंगिन थो स्टेट ट्री है। ठीक है जी। अच्छा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की गल करिए। सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क इत्थे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वेरी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इस तो इलावा सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर दे विच है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर दे विच है। खोंजेंग चेंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। योंगोपोई लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने। और इस तो इलावा सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट लोकटक लेक है। सब तो ज़्यादा फेमस लेक लोकटक लेक कित्थे है मणिपुर दे विच। लोकटक लेक मणिपुर। ठीक है जी। एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता लोकटक लेक किहड़ी स्टेट दे विच है मणिपुर दे विच। नैक्सट है अज की फर्स्ट न्यूज़ आप डिस्कस करांगे। एवरी होम अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर इनिशिएटिव स्टार्टड बाय। एक इनिशिएटिव शुरू किया गया लॉकडाउन कारण स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए कि एवरी होम अ टीचर एंड एवरी पेरेंट अ टीचर। एवरी होम अ स्कूल एंड एवरी पेरेंट अ टीचर कि हर एक घर एक स्कूल है और हर एक पेरेंट है जिहड़ा ओह टीचर है। ठीक है। एक शुरू किया गया दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इस इनिशिएटिव नूं शुरू किया गया। इस तो इलावा दिल्ली गवर्नमेंट के ईवेंट्स याद रखने ने 5T याद रखने ने और दूजा शील्ड 5T और शील्ड 2 इवेंट्स दो चीज़ां याद रखनी ने किस दियां दिल्ली दियां। इस तो इलावा एवरी होम अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर कितने द्वारा शुरू किया गया दिल्ली द्वारा। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस दे विच महाराष्ट्र के बारे याद रखना चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। चीफ मिनिस्टर कौन ने उद्धव ठाकरे और गवर्नर इत्थे दे कौन ने भगत सिंह कोश्यारी इत्थे दे गवर्नर ने। तमिलनाडु E.K. पलानास्वामी चीफ मिनिस्टर ने और गवर्नर ने इत्थे दे बनवारी लाल पुरोहित। गुजरात विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान दे। ठीक है जी। याद रखने ने।
अच्छा, इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अगर आप गल करिए राजस्थान बारे, राजस्थान के बारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की गल करिए तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर नूं नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया सी। राजस्थान के जयपुर नूं नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया सी। इस दे नाल याद रखना है गुजरात बारे, गुजरात बारे अगर आप डिस्कस करिए, गुजरात के COP13 कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई सी गुजरात दे विच। सॉरी, भूपेश बघेल की गल करिए, भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़ के ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन ने? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है जी। COP13 गांधीनगर गुजरात दे विच याद रखनी है। ठीक है, जिस दे विच मैस्कोट की रहा सी COP13 कॉन्फ्रेंस का मैस्कोट एक बर्ड रहा सी। COP13 मैस्कोट की रहा सी, कमेंट बॉक्स में दसने। गिबी मैस्कोट सी, इसकी फुल फॉर्म दसनी है, गिबी दी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरेटरी लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप नारी। नारी मोबाइल ऐप केड़ी स्टेट केड़ी यूनियन टेरेटरी द्वारा लॉन्च की गई? केड़ी यूनियन टेरेटरी द्वारा लॉन्च की गई नारी? इसनूं लॉन्च किया गया पुडुचेरी द्वारा। बेसिकली इसनूं लॉन्च किया गया पुडुचेरी द्वारा। किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? पुडुचेरी द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। अच्छा, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन ने? पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने। याद रखने ने पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन ने? वी नारायण स्वामी। अच्छा, इस तो इलावा अगर गवर्नर्स की गल करिए, बाकी यूनियन टेरेटरीज के गवर्नर्स की गल करिए तो कौन कौन ने? इन्हों के बारे आप फोटो के नाल डिस्कस कर लें। VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के गवर्नर ने। इस दे नाल चंडीगढ़ के गवर्नर ने VP सिंह बदनौर। DK जोशी अंडेमान एंड निकोबार के गवर्नर ने। अंडेमान एंड निकोबार के गवर्नर कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं अंडेमान निकोबार के। दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के। दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के गवर्नर ने। प्रफुल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर ने दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली। दो यूनियन टेरेटरीज दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रफुल पटेल। दोनों के प्रफुल पटेल। टोटल 9 यूनियन टेरेटरीज ने, इस करके 8 नाम ने क्योंकि दो उन्होंने सेम ने। RK माथुर लद्दाख। RK माथुर ने लद्दाख दे। किरण बेदी पुडुचेरी के गवर्नर ने। पुडुचेरी के लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन ने? किरण बेदी। अनिल बैजल ने दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। GC मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के GC मुर्मू। ठीक है जी। सब तो ज़्यादा इन्होंने नाम याद रखने तो दिनेश्वर शर्मा का रिसेंटली अपॉइंटेड ने। RK माथुर का नाम याद रखना, यह भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने। और GC मुर्मू ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने। 3 नाम तो वेरी 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 इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेम द रेलवे स्टेशन विच इज़ फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। एक रेलवे स्टेशन द्वारा सैनिटाइजिंग टनल्स नूं इंस्टॉल किया गया। सैनिटाइजिंग टनल्स नूं, अच्छा सैनिटाइजिंग टनल्स तो याद आता है वी सेफ टनल किन्ना द्वारा इंस्टॉल की गई थी? किहड़ी स्टेट द्वारा? तेलंगाना द्वारा। वी सेफ टनल्स तेलंगाना द्वारा। अच्छा, किहड़े रेलवे स्टेशन ने सैनिटाइजिंग टनल्स इंस्टॉल किया? इसका करैक्ट आंसर बनता है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जिहड़ा कि वैसटर्न रेलवे अंडर आता है, वैसटर्न रेलवे जोन के अंडर आता है, इसके द्वारा इंस्टॉल की गई सैनिटाइजिंग टनल्स। फर्स्ट रेलवे स्टेशन बनया जिसने सैनिटाइजिंग टनल्स को इंस्टॉल किया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा एक इंपोर्टेंट चीज़ अगर किसी को याद आए, FSSAI इन्हों द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग दिता गया सी। किसनों दिता गया सी? यह दिता गया सी मुंबई सेंट्रल नूं। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नूं ईट राइट स्टेशन का टैग FSSAI द्वारा किन्ने स्टार? 4 स्टार टैग। और इस दे नाल ईट राइट स्टेशन 5 स्टार टैग दिता गया सी छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दोनों के बारे याद रखना है। मुंबई सेंट्रल नूं 4 स्टार और छत्रपति शिवाजी नूं 5 स्टार
ई ट्राई स्टेशन कहा गया सी FSSAI द्वारा। ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा मैं एग्जाम के लिए, एक रेलवे स्टेशन सी जिथे कुछ बनाया गया सी, इंपोर्टेंट बनाया गया सी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट बनाया गया सी जिथे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए सी। ठीक है, उस रेलवे स्टेशन का नाम दसना है कि वह कित्थे बनाया गया सी। नैक्सट आप चलते हैं, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फ्लैटन द कोविड-19 कर्व। केड़ी स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने फ्लैटन की है कोविड-19 कर्व। इसका की मतलब है कि उस स्टेट दे विच कोविड-19 के केसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है जी। और अगर उन्होंने कुछ पुराने कुछ दिनों की गल करी जाए तो उन्होंने कर्व इस तरीके आ गई है, तो यानी कि ये जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग एरिया सी और डिक्रीज होना शुरू हो गया और कोविड-19 के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिकवर होने शुरू हो गए हैं और नवे पेशेंट्स मिलने काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं। ठीक है, केड़ी स्टेट बनी है जिसने इस कर्व नू किया? केरला। करैक्ट आंसर केड़ा बनेगा अपना? केरला। केरला फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने फ्लैटन की है कर्व ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की कर्व नू फ्लैटन किया है। ठीक है जी। कोविड-19 का फर्स्ट केस कित्थे पाया गया सी? केरला दे विच। कोविड-19 का फर्स्ट केस भी कित्थे पाया गया सी? केरला दे विच। ब्रेक द चेन इनीशिएटिव, ब्रेक द चेन इनीशिएटिव किन्ना द्वारा शुरू किया गया सी? केरला द्वारा। करनाटका, करनाटका की गल करिए, करनाटका द्वारा शुरू किया गया सी इनीशिएटिव नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन करनाटका द्वारा। करनाटका द्वारा फूड हैल्पलाइन नंबर शुरू किया गया सी 155214, 155214 फूड हैल्पलाइन नंबर करनाटका द्वारा। कोरोना वाच, कोरोना वाच एप्लीकेशन किन्ना द्वारा शुरू की गई थी? करनाटका द्वारा। ठीक है जी, सारी चीज़ां याद रखनियां ने। झारखंड की गल करिए, झारखंड द्वारा प्रज्ञान एप्लीकेशन, प्रज्ञान एप्लीकेशन शुरू की गई थी झारखंड द्वारा। झारखंड द्वारा हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन 11th चीफ मिनिस्टर बनाया गया सी। 11th चीफ मिनिस्टर कौन बने सी? हेमंत सोरेन बने थे, रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश द्वारा मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ स्टार्ट किया गया सी आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी ने बिशव भूषण हरिचंदन, बिशव भूषण हरिचंदन इत्थे दे गवर्नर ने। लो नेस्टम स्कीम, नेतनम नेस्टम स्कीम, अम्मा वोदी स्कीम, नाडू नेडू प्रोग्राम, ये सारे कित्थे दे ने? आंध्र प्रदेश के। ठीक है जी। अगर आंध्र प्रदेश की कैपिटल की गल की जाए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल इस टाइम हैदराबाद है। हैदराबाद दे विच बनाया गया सी एक रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन नहीं, हैदराबाद दे विच बनाया गया सी विंग्स इंडिया इवेंट। विंग्स इंडिया इवेंट कित्थे हेल्ड किया गया सी? हैदराबाद दे विच। ठीक है जी। हैदराबाद दे विच वर्ल्ड दा लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर है, वर्ल्ड दा लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर कित्थे है? हैदराबाद दे विच। आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स 2024 दे विच चेंज हो जाएगी, अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम, 3 कैपिटल्स बन जाएंगियां आंध्र प्रदेश दियां। इस टाइम तेलंगाना के नाल शेयर कर दी है आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद। नैक्सट है, ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 के कारण रोजर्स कप नू पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। रोजर्स कप हैल्ड होना सी 2020 के विच, इसनू पोस्टपोन किया गया नैक्सट ईयर के लिए। रोजर्स कप किहड़ी स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड है? रोजर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? रोजर्स कप किहड़ी स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड है? यह रिलेटेड है टेनिस के नाल। टेनिस का एक इंपोर्टेंट इवेंट है रोजर्स कप, जिहड़ा कि पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। 2021 रोजर्स कप टेनिस का एक इंपोर्टेंट इवेंट है। ठीक है जी। अच्छा टेनिस का इस याद रखने ने ग्रैंड स्लैम्स, टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स याद रखने ने। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम्स ने? 4 ग्रैंड स्लैम्स ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन हेल्ड हो चुका है। ठीक है जी। इसके इवेंट्स, इसके विनर्स का नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविक मैन कैटेगरी दे विच और वूमेन कैटेगरी दे विच सोफिया कैनिन। फ्रेंच ओपन पोस्टपोन किया गया, याद रखना है, फ्रेंच ओपन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन किया गया। विंबलडन ओपन कोविड-19 के कारण कैंसल किया गया और फर्स्ट टाइम होया वर्ल्ड वार सेकेंड तो बाद विंबलडन ओपन कैंसल किया गया और US ओपन दिसंबर के विच हेल्ड किया जाना है।
इस तो इलावा फुटबॉल की गल करिए, फुटबॉल की अगर आप गल करिए, फुटबॉल दे विच फीफा का वर्ल्ड कप होएगा कतर दे विच, कतर दे विच होएगा 2022। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, कैनेडा और मैक्सीको, यूएसए कैनेडा मैक्सीको 3 कंट्रीज़ मिलके होस्ट करनगियां। इस तो इलावा फीफा का अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप, अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप इंडिया दे विच हैल्ड किया जाना सी, जिसनूं पोस्टपोन किया गया, जिसनूं पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड-19 के कारण इसनूं पोस्टपोन किया गया। चैस की गल करिए, एक इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, कोनेरू हम्पी वूमेन चैस प्लेयर ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये चैस तो बिलोंग करते हैं। विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये भी चैस तो बिलोंग करते हैं। विश्वनाथन आनंद की बुक याद रखनी है, माइंड मास्टर किन्ना दी बुक है, विश्वनाथन आनंद जी की। ठीक है जी, जिन्ने इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने सारे के सारे नोट करते हुए चलने ने और याद रखने ने। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किन्होंने बनाया गया, किन्होंने अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इन्होंने अपॉइंट किया गया RV वर्मा नूं अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन हुए ने, RV वर्मा। अच्छा, बाकी ऑप्शन के विच अमरजीत सन्हा और भास्कर खुलबे, अमरजीत सन्हा और भास्कर खुलबे दो इंपोर्टेंट नाम ने। इन्हों एडवाइजर बनाया गया सी, एडवाइजर बनाया गया सी किन्ना दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे एडवाइजर बनाए गए सी अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे, अमरजीत सिन्हा भास्कर खुलबे। SK सानी जी की गल करिए, SK सानी बनाए गए डिप्टी आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ बनाए गए SK सानी। बेसिकली की होया कि आर्मी चीफ हुंदे सी जनरल बिपिन रावत, डिप्टी आर्मी चीफ हुंदे सी मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है जी, तो की होया, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत नूं प्रमोट किया गया CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिता गया जनरल बिपिन रावत। आर्मी चीफ की पोस्ट खाली हुई, आर्मी चीफ की पोस्ट खाली हुई तो डिप्टी आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने नूं आर्मी चीफ बना दिता गया। आर्मी चीफ कौन बन गए, मनोज मुकुंद नरवाने। तो डिप्टी आर्मी चीफ की पोस्ट खाली हुई, डिप्टी आर्मी चीफ किन्होंने बना दिता गया, SK सानी, SK सानी बन गए अपने डिप्टी आर्मी चीफ। नैक्सट है नूपुर कुलश्रेष्ठा, नूपुर कुलश्रेष्ठा की गल करिए, इन्हों बनाया गया सी DIG, किसका, ICG का, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल, इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल कौन ने, नूपुर कुलश्रेष्ठा। इंडियन कोस्ट गार्ड की गल करिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरैक्टर जनरल कौन ने, के नटराजन डायरैक्टर जनरल ने इंडियन कोस्ट गार्ड के, और नूपुर कुलश्रेष्ठा डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने। नेक्स्ट है, हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। सब तो पहले G20 की अगर आप गल करिए, G20 दे विच 19 कंट्रीज़ ने प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। अगर आप गल करिए, क्वेश्चन इस तरीके याद रखना है कि G20 के 20 कंट्रीज़ नहीं ने, G20 के 19 कंट्रीज़ ने, इस दे नाल यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन ऑटोमैटिक अपने आप दे एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, तो G20 के 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, याद रखना है। G20 का सूँ याद होगा आप डिस्कस किया 2020 का समिट किसने होस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के किंग कौन ने, किंग सलमान द्वारा होस्ट किया गया सऊदी अरेबिया का G20 समिट, जिस दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाल पार्टिसिपेट किया सी। ड्यू टू कोरोना वायरस ज़्यादातर मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के नाल। ठीक है जी, हुण एक मीटिंग हैल्ड की गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई। इसनूं किन्ना द्वारा हैल्ड किया गया, किन्ना द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पार्टिसिपेट किया गया।
धर्मेंद्र प्रधान कौन ने? धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान। इस तो इलावा स्टील मिनिस्ट्री है और यह ने लोक सभा MP नहीं सॉरी राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। पीयूष गोयल की गल करिए, पीयूष गोयल अपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने प्लस रेलवे मिनिस्टर ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने झारखंड तो। झारखंड तो राज्यसभा MP ने। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी की गल करिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है और माइन मिनिस्ट्री है। कोल मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी। धरवड़ कर्नाटका, धरवड़ कर्नाटका तो लोकसभा MP ने प्रहलाद जोशी। अर्जुन मुंडा ने अपने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने खूंटी झारखंड तो लोकसभा MP ने। खूंटी झारखंड तो लोकसभा MP ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने। अच्छा एक क्वेश्चन दिने अर्जुन मुंडा नूं किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजिडेंट बनाया गया सी। अर्जुन मुंडा नूं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजिडेंट बनाया गया। ठीक है, किहड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का इन्हों प्रेजिडेंट बनाया गया सी? रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने, पिछले आई थिंक जनवरी के बनाया गया सी। अर्जुन मुंडा नूं किहड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजिडेंट बनाया गया सी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दसने। इस तो इलावा G20 के समिट्स की गल करिए। G20 2019 हैल्ड किया गया सी जापान ओसाका जापान दे विच 2020 ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ 2021 ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਟਲੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ 2021 ਦਾ ਸਮਿਟ। और वेरी इंपोर्टेंट 2022 इसनों होस्ट करेगा इंडिया। अपना इंडिया होस्ट करेगा 2022 का समिट। याद रखना है G20 2022 कौन होस्ट करेगा? इंडिया। नेक्स्ट है नेम द इंडियन फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ IMF मैंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। IMF के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का मैंबर बनाया गया किनू? RBI गवर्नर नूं। किहड़े RBI गवर्नर नूं? ऑप्शन रघुराम राजन। फर्स्ट ऑप्शन रघुराम राजन। ठीक है जी, रघुराम राजन नूं बनाया गया सी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का मैंबर IMF द्वारा। रघुराम राजन की गल करिए सब तो पहले आई डू वट आई डू, इन्हां दी वेरी इंपोर्टेंट बुक है आई डू वट आई डू। क्वेश्चन पूछा जाता है आई डू वट आई डू किन्हां दी बुक है? रघुराम राजन की, फॉर्मर RBI गवर्नर ने। वेरी इंपोर्टेंट नेम है। ठीक है, उस तो बाद IMF की अगर आप गल करिए, IMF ने इंटरनेशनल मोनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। इस दे बारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स अगर आप गल करिए 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। वाशिंगटन DC दे विच इस दा हैडक्वार्टर है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस दे हैड ने। IMF के हैड कौन ने? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नैक्सट आप गल करिए RBI की गल करते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली 1 अप्रैल 1935 के बनाया गया इसनूं और रिसेंटली इसने 85th बर्थ एनिवर्सरी 85th फाउंडेशन डे सैलीब्रेट किया है। 85th फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1935। गवर्नर की गल करिए शक्तिकांत दास गवर्नर ने। डिप्टी गवर्नर 4+1 रूल होंगे। एक डिप्टी गवर्नर की पोस्ट खाली है। 3 डिप्टी गवर्नर की गल करिए BP कनगो रिसेंटली इन्होंने 1 ईयर की एक्सटेंशन मिली है। MK जैन और तीजा नाम है माइकल डी पात्रा। ठीक है जी, ये 3 इसके डिप्टी गवर्नर्स ने। इस तो इलावा गल करते हैं मोनेटरी पॉलिसी कमेटी की। RBI की MPC RBI की मोनेटरी पॉलिसी कमेटी होंगी है। इस दे विच 3 मैंबर्स होंगे ने RBI के, 3 होंगे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
6 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MPC, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ RBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਪਾਤਰਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਕ ਰਾਜ। 3 ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਪਾਤਰਾ ਔਰ ਜਨਕ ਰਾਜ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ RBI ਵੱਲੋਂ MPC ਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, फर्स्ट नेम है पामी दुआ, चेतन घाटे, रविंदर एच ढोलकिया। पामी दुआ, चेतन घाटे, रविंदर एच ढोलकिया। 3 नाम याद रखने ने, पामी दुआ, चेतन घाटे, रविंदर एच ढोलकिया। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों MPC के मैंबर ने। नेक्स्ट है अ बुक द वेंगनार्ड सीरीज सीजन 1 इज रिटन बाय, एक बुक लिखी गई वाइगनार्ड सीरीज सीजन 1 किन्ना द्वारा लिखी गई। इस बुक ਨੂੰ बेसिकली लिखा गया कोब बरियाड द्वारा। कोब बरियाड बारे ਆਪਾਂ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी फेमस नाम है। इस दे नाल इन्होंने ऑथर किया वेस्ले किंग ने। तो अपना करेक्ट आंसर होएगा फर्स्ट एंड सैकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। कोब बरियाड के बारे आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फेमस नाम है। बास्केटबॉल प्लेयर सीगे, अमेरिका तो बिलोंग करते सी। रिसेंटली इन्हों का प्लेन क्रैश इन्हों का और इन्हों की बेटी का एक्सीडेंट होया सी और इन्हों की डेथ हो गई सी। ठीक है जी, कोब बरियाड द्वारा इस बुक को लिखा गया। रिसेंटली इन्हों बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम भी इन्हों का नाम ऐड किया गया। इस बुक को रिलीज़ किया गया इन्हों की डेथ तो बाद, विंगनार्ड सीरीज सीजन 1। कोब बरियाड और इस इन्हों के को ऑथर सीगे वेस्ले किंग। मैरी जॉर्डन की गल करिए, इन्हों दोबारा एक रिसेंटली बुक डिक्लेयर की गई है, द आर्ट ऑफ हर डील, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया, मैरी जॉर्डन द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है विच इंडियन पर्सनैलिटी इज नोन एज बाबा साहेब। किहड़ी इंडियन पर्सनैलिटी नूं बाबा साहेब कहा गया, किहड़ी इंडियन पर्सनैलिटी नूं बाबा साहेब कहा गया। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। ठीक है जी, इन्होंने बाबा साहेब कहा जाता सी। इन्हों के बारे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल यानी कि कल इन्हों की बर्थ एनीवर्सरी सी 14 अप्रैल नूं बर्थ एनीवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हों के बारे डिटेल भी डिस्कस करांगे। उस तो पहले बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हों कहा जाता सी आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर निक नेम्स की गल करिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाला लाजपत राय, इन्हों कहा जाता सी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाल बहादुर शास्त्री नूं कहा जाता सी पीसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इन्होंने तुहानूं याद हैगा ताशकंद दे विच इन्होंने वॉर एग्रीमेंट के ट्रीटी के उत्ते साइन किया सी। वॉर एग्रीमेंट नूं साइन किया सी लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद उजबेकिस्तान दे विच। सुभाष चंद्र बोस नूं कहा जाता है नेताजी निक नेम सीगा सुभाष चंद्र बोस का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गल करिए, इन्हों की बर्थ एनीवर्सरी सी कल के दिन 14 अप्रैल 1891 के विच इन्हों का बर्थ होया सी। 1891 के विच इन्हों का बर्थ होया सी। चीफ आर्कीटैक्ट सीगे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना सी तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई सी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिहड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन नूं बनाएगी। उस कमेटी के हैड सीगे, उस कमेटी के हैड कौन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के हैड सी। इन्हों भारत रत्न मिल चुका है 1990 के इन्हों भारत रत्न दिता जा चुका है। इंपोर्टेंट चीज़ है कि ओनली इंडियन ने जिन्हों का स्टैचू अटैच किया गया कार्ल मार्क्स इन लंडन के म्यूजियम के कार्ल मार्क्स के नाल ओनली इंडियन ने जिन्हों का स्टैचू लगाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हों की एक बुक है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इस बुक किन्ना द्वारा लिखी गई है, यह बुक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।